بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار اور بی بی خدیجہ کی شادی اور قریش کی تباہی کے راستے کی طرف جانے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا اور تمہیں راہ حق سے ناآشنا پا کر ہدایت نہیں دی؟ جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا، تب بھی اللہ تعالی نے آپ کو اپنی رحمت سے محروم نہ کیا۔ سب سے پہلے آپ کو ایک ایسا شفیق دادا ملا، عبد المطلب، جنہوں نے آپ کو ماں باپ کی محبت کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی محبت بھری آغوش میں لے لیا۔ عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے ابو طالب کو وصیت کی تھی، محمد کا خوب خیال رکھنا، ان کی حفاظت اور تربیت میں کوئی کوتاہی نہ برتنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں جن سے ان کے 10 بیٹے ہوئے، لیکن ابو طالب نہ تو سب سے بڑے تھے اور نہ ہی سب سے مالدار۔ پھر بھی ان میں سب سے زیادہ جرات، شرافت اور نرم مزاجی پائی جاتی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ حضرت عبداللہ نبی کے والد کے سگے بھائی تھے، جبکہ باقی بیٹے سوتیلے تھے۔ اسی لیے عبد المطلب نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ یہی ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کریں۔ ابو طالب نے اس ذمہ داری کو نہ صرف نبھایا بلکہ نبوت سے پہلے اور بعد تک ہر قدم پر آپ کی حفاظت و مدد کرتے رہے۔ وہ آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، چاہے سفر ہو یا حضر، نیند ہو یا بیداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت کسی والد سے کم نہ تھی۔ یقیناً یہ محبت معمولی نہ تھی۔ اگر انہیں اپنے بچوں کی اتنی پرواہ نہ ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیوں کرتے؟ وہ ہر وقت آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے۔ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آپ کے اندر سچائی، دیانت، شرافت اور پاکیزگی موجود ہے۔ آپ کی ہر بات، ہر عمل آپ کی عقل، دانائی اور سمجھداری کا ثبوت دیتا تھا۔ آپ کی شخصیت سے عظمت اور قابلیت نمایاں تھی۔ جب سے ابو طالب کی سرپرستی میں آئے 4 سال گزر چکے تھے۔ آپ کا جسم بھی بڑھ رہا تھا اور عقل و فہم میں بھی وسعت آتی جا رہی تھی۔ آپ کی فطری صلاحیتیں اور قوتیں ابھر رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو جسم میں خاصی طاقت آ چکی تھی۔ ذہن گہرا، بالغ نظر اور فہم و فراست سے بھرپور تھا۔ روح میں ایک خاص بلندی اور وسعت تھی۔ آپ کی شخصیت میں شعور، حساسیت اور بلند خیالات کا عکس تھا۔ عمر ابھی زیادہ نہ تھی، ابھی تو آپ بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے، مگر آپ کی پیشانی سے ذہانت اور قابلیت کا نور چمک رہا تھا۔ آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں اور حیرت انگیز علامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ ابو طالب روز بروز یہ سب دیکھ کر حیران ہوتے۔ ان کی نظر میں آپ اب ایک بچہ نہ تھے، بلکہ ایک بالغ، عقل مند اور مشورہ دینے کے قابل فرد بن چکے تھے۔ ابو طالب ہر معاملے میں آپ سے مشورہ کرتے جیسے کوئی شخص اپنے برابر کے شریک سے رائے لیتا ہے۔ اسی دوران جب آپ کی عمر 12 سال کے قریب تھی، ابو طالب نے شام، سیریا کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ یہ سفر طویل اور دشوار گزار تھا، اس لیے پہلے ارادہ نہ تھا کہ آپ کو ساتھ لے جائیں، لیکن جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو آپ لپٹ گئے اور جانے کی ضد کی۔ ابو طالب نے سوچا کہ سفر تو مشکل ہے لیکن بھتیجا سمجھدار ہے، اور یوں انہوں نے خوشی خوشی آپ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ راستے بھر آپ جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو سنتے اس پر سوچتے اور ہر چیز کو ذہن نشین کر لیتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرتا رہا، کئی شہروں میں ٹھہرا، یہاں تک کہ شام، سیریا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ قافلہ ایک مشہور شہر بصری میں پہنچا اور وہیں قیام کیا۔ بصری میں ایک نصرانی عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیری تھا۔ اس کا گرجا گھر ایک چھاؤندار جگہ کے قریب تھا۔ قریش کے تاجر جب بھی بصری آتے وہیں آ کر رکا کرتے اور کچھ دیر آرام کے بعد اپنا کاروبار شروع کرتے۔ اسی طرح یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر رکا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کوئی تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر سستا رہا تھا، کوئی بھوکا تھا تو کھانے لگا، اور کوئی اپنا سامان درست کرنے میں مشغول تھا تاکہ جلدی فروخت کر سکے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص آیا اور کہا، آئیے، آپ سب کو بحیری راہب نے کھانے کی دعوت دی ہے،
सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। आपस में नजरें मिलें। गौया पूछ रहे हूं कि हम तो कई बार यहां आ चुके हैं, मगर कभी बुहेरी ने ना बुलाया। आज अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? बहरहाल सबने दावत कबूल की और उस शख्स की रहनुमाई में रवाना हो गए। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रह गए, क्योंकि आप उस वक्त बचे थे, इसलिए आपको साथ न ले गए। जब सब मेहमान बुहेरी के पास पहुंचे तो उसने सबका प्रतिपाक इस्तकबाल किया और कहा, भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और तुम में से कोई पीछे न रह जाए। काफिले वालों ने जवाब दिया, हम सब आ गए हैं। हाँ, एक छोटा सा लड़का साथ था, उसे वहीं छोड़ आए हैं। बुहेरी फौरन बोला, नहीं, लड़का है तो क्या हुआ, उसे भी बुलाओ, वो भी हमारे साथ खाना खाएगा। सब हैरान रह गए कि न सिर्फ इस राहब ने आज अपनी आदत से हटकर दावत दी, बल्कि ये भी इसरार किया कि कोई भी पीछे न रह जाए, खास तौर पर इस बच्चे को जरूर बुलाया जाए। फिर सबने पूछा, बुहेरी, ये सब क्या माजरा है? आज आपने हमें क्यों बुलाया है? काफिले वालों ने हैरत से पूछा, आपने तो पहले कभी हमें बुलाया नहीं, आज ऐसा क्या खास हो गया? बुहेरी ने जवाब दिया, आप लोग मेहमान हैं, हमारे करीब आकर ठहरे हैं, आपका हम पर हक है। मैंने चाहा कि कुछ खिदमत हो जाए, बस और क्या बात हो सकती है? काफिले वाले बोले, खुदा की कसम, कोई ना कोई बात जरूर है, ये सब सिर्फ मेहमान नवाजी की बात नहीं लगती। फिर वो शख्स जो बुलाने आया था अबू तालिब के कैंप पर पहुंचा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आया। बुहेरी और तमाम मेहमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बुहेरी की नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो देखता ही रह गया। उसकी नजरें आप पर जम गईं, गौया कोई खास बात महसूस कर रहा हो। सबने मिलकर खाना खाया और फिर इधर उधर चहलकदमी करने लगे। कुछ लोग गर्जा देखने चले गए, कुछ आराम करने लगे। इसी दौरान बुहेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, बेटा, लात और उज़्ज़ी की कसम देकर पूछता हूं, जो पूछूं सच सच बता देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, मुझे लात और उज़्ज़ी की कसम ना दें, मैं उनसे नफरत करता हूं। बुहेरी ने कहा, अच्छा, तो खुदा की कसम, जो पूछूं सच सच बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? फिर बुहेरी ने आपकी तबीयत, आदात, मिजाज और अखलाक से मुताल्लिक कई सवालात किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सवाल का साफ और सच्चा जवाब दिया। इतने में अबू तालिब आ गए। बुहेरी ने पूछा, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बुहेरी ने फौरन कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं हो सकता। बुहेरी की बातें सुनकर अबू तालिब हैरत ज़दा रह गए। उनके चेहरे पर ताजब नमाया था। हाँ, ये मेरा भतीजा है, उन्होंने सच बताते हुए कहा। बुहेरी ने पूछा, उसके वालिद कहाँ हैं? अबू तालिब ने वजाहत की, जब ये अपनी माँ के पेट में था तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। बुहेरी ने कहा, तुमने सच कहा, अब उसे फौरन वापस ले जाओ और उसका बहुत ख्याल रखो, खास तौर पर उसे यहूदियों से बचा कर रखना। खुदा की किस्म, अगर उन्होंने उसे पहचान लिया जैसा कि मैंने पहचाना है तो ये उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। फिर वो जज्बात से भरे अंदाज में बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारा ये भतीजा कितना अजीम इंसान बनेगा। ये एक ऐसा नायाब हीरा है जैसा दुनिया ने कभी न देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बुहेरी कोई मुकद्दस किताब पढ़ रहा हो या कोई अनबियाई राज खोल रहा हो। उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान नमाया था। दिल में कह रहा था, मेरा अंदाजा बिल्कुल दरस्त निकला। अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस लौट आए। बुहेरी की कही हुई हर बात उनके जहन में गर्दिश कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेश गोइयां की गई थीं, वो बार बार याद आ रही थीं। ये पहला मौका था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन से बाहर निकले थे। वापसी के सफ़र में आपने वो सब कुछ याद किया जो इस तवील सफ़र के दौरान देखा और सुना था। आपने सहरा, पहाड़, सरसब्ज वादियों, फूलों से लदे बागात, मुख्तलिफ रास्तों और शहरों को गौर से देखा। इन मकामात पर गुजरने वाले हालात और लोगों की बातों पर गहरी तौजह दी।
और सब कुछ अपने जहन में महफूज कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग में बहुत से सवालात पैदा हो रहे थे। हर चीज को आप गौर से देखते, सोचते कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, सच क्या है और झूठ क्या, अल्लाह का सच्चा दीन कौन सा है, किस कौम की इबादत सही है। सफर में आपने मुख्तलिफ किस्म के लोग देखे थे। कुछ वो थे जो पत्थरों की पूजा करते थे, कुछ आग की। कोई बतों के सामने झुकते थे तो कुछ आसमानी किताबों के पैरोकार थे। किसी ने दीन को राहिबों और पादरियों के हाथों में दे रखा था जो अपनी मर्जी से दीनी बातें बनाते थे। बाज लोग यहूदी इल्मा की अंधी तकलीद करते थे जो आसमानी किताबों की अपनी तरफ से तशरीह करते थे। संधीरे माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी की तलाश में थे। आपका जहन हर वक्त किसी सच्ची बात, किसी रहनुमाई के निशान की तलाश में रहता। आप गौर और फिक्र में डूबे रहते। कम उम्री के बावजूद आपको हिदायत की फिक्र थी, हक की तलाश थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन फजूल कामों से दूर रहते। आपको किसी तमाशे या खेल में दिलचस्पी ना होती, हमेशा सच की तलाश में लगे रहते, ऐसी बातों की जस्तजू में रहते जो हिदायत और रहनुमाई दे सकें। आप अपने घर वालों के साथ अरब के मशहूर मेलों में भी जाते, जैसे उकाज, मजन्ना और जुवाल मजाज। ये बाजार मक्का के आसपास लगते थे और हिरमत वाले महीनों में मुनाकद होते थे। इन महीनों में लड़ाई झगड़ा हराम होता, दुश्मनियां खत्म कर दी जाते और अमन कायम हो जाता। ये मेलों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें कुछ और तलाश करती थीं। लोग तिजारती और तफरीही कामों में लगे रहते, लेकिन आपकी निगाह किसी सच्चाई, किसी हकीकत की तलाश में सरगर्दां रहती। ये बाजार बहुत भरपूर होते थे। दौर दौर से लोग आते, मुख्तलिफ इलाकों के बाशिंदे वहां मौजूद होते। हर तरफ चहल पहल और रौनक होती। इन बाजारों में मुख्तलिफ अशिया की खरीद और फरोख्त के साथ साथ शारी मुकाबले भी होते। खतीब अपनी तकरीरें पेश करते, हर शख्स अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करता। हर मजहब के लोग अपने अकायद की तबलीग करते और किसी को किसी से खौफ ना होता, क्योंकि ये हुर्मत के महीने होते थे। हरमत के ये 4 महीने थे, जुल्क़ादा, जुल्हुजा, मुहर्रम और रजब। इन बाजारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ लोगों से मिलने का, उनके ख्यालात और अकायद को जानने का और उनकी बातों को गौर से सुनकर सच और झूठ को पहचानने का बेहतरीन मौका मिलता था। आप सच को जहन में बैठा लेते और झूठ से दूर रहते। जब तन्हाई मिलती तो हर चीज पर गौर करते। जब आप 12 बरस के हुए तो बकरियां चराने लगे। ये काम आपको बहुत पसंद था। कुछ बकरियां घर की होते और कुछ कबीले वालों की। आप उन्हें लेकर दूर मैदानों और टीलों पर ले जाते, जहां बकरियां आजादाना चर सकें और आपको खामोश प्रामन माहौल मिलता। तन्हाई और फितरत का कुर्ब आपके गौर व फिक्र में मदद देता। अल्लाह की बनाई हुई फैली हुई कायनात एक खुली किताब की तरह आपके सामने होती और आप उसे पढ़ने, समझने और उसके राजों पर गौर करने की कोशिश करते। आपका लड़कपन और जवानी का जमाना न तो खेल तमाशे में गुजरा, न हंसी मजाक में, न फजूल बातों में और न ही बेमकसद कामों में। बहुत कम उम्री में ही आप संजीदा, मुतफक्किर और हकीकत पसंद हो चुके थे। बचपन की बात है, मक्का में काबा की दीवारों की तामीर हो रही थी। सब बच्चे अपना तहबंद उतार कर कुंधों पर रख लेते ताकि पत्थर उठाने में आसानी हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद मजबूती से बांध रखा। चचा ने कहा, देखो बाकी बच्चे कितनी आसानी से पत्थर उठा रहे हैं, तुम भी अपना तहबंद कुंधे पर रख लो ताकि तकलीफ ना हो। आपने चचा की बात मानकर जैसे ही तहबंद हटाना चाहा तो शर्म की शिद्दत से बेहोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्री में ही नहायत संजीदा, पाकीज़ा मिजाज और दूरअंदेश थे। आप में बड़ों जैसी संजीदगी, शरीफों जैसी पाकीज़गी और बुजुर्गों जैसी अक्लमंदी पाई जाती थी। मक्का में ये दस्तूर था कि लोग रात को आराम के बाद जमा होते, महफिलें सजाते, दास्तानें सुनी और सुनाई जाते। ये उन दिनों का मशहूर तफरीही प्रोग्राम था। एक बार आपके एक साथी ने कहा, मोहम्मद आओ आज की महफिल में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। आपने फरमाया, ठीक है, लेकिन मेरी बिक्रियां तुम संभालना। आप तफरीह के इरादे से आबादी की तरफ चले। रास्ते में एक घर से गाने की आवाज आई।
आप रखकर सुनने लगे। नींद का गलबा हुआ और वहीं सो गए। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, सूरज चमक रहा था। आप सीधे साथी के पास लौट आए। दूसरी रात वही साथी फिर ले जाना चाहता था। आप फिर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में फिर किसी घर से गाने की आवाज आई। आप रख गए, सुनने लगे और फिर सो गए। आपने पूरी जवानी में सिर्फ 2 मर्तबा ऐसी किसी महफिल में जाने का इरादा किया, लेकिन दोनों बार अल्लाह ताली ने आपको बचा लिया, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक आपका मकाम ऐसा न था कि आप फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करें। उसके बाद कभी ख्याल तक ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी के आलम में निहायत पाकीज़ा, बाकिरदार और बाएतमाद शख्सियत के मालिक थे। आपकी सच्चाई और दयानतदारी इतनी मशहूर थी कि मक्का के लोग आपको अमीन के लक़ब से पुकारते, और ये खिताब किसी और को ज़ेब ना देता, सिर्फ आप ही को। ना कभी झूठ बोला, ना किसी से बददियानती की, ना किसी फरेब या दगाबाजी में मुलौस हुए, ना कोई ऐसी हरकत की जो आपके किरदार को दागदार करे। शर्म व हया आपकी फितरत में शामिल थी और पाकदामनी आपकी पहचान। जवानी में आपने तीरंदाजी सीखी। फिर जब जंग फजार हुई, जो कुरैश और हवाज़िन के दरमियान एक सख्त लड़ाई थी, तो आप भी चचाओं के साथ शरीक हुए। अगरचा आपने किसी पर हमला नहीं किया, बस अपने चचाओं को तीर पकड़ाते और मुखालिफ की तरफ से आने वाले तीरों को रोकते। ये जंग बहुत तबाहकुन थी, कबीले बर्बाद हो गए। इस पर कुछ संजीदा लोगों ने सुलह की अपील की। नतीजा ये निकला कि दोनों फरीकों में एक माहिदा हुआ, जिसे बाद में हिल्फुल फजूल के नाम से याद किया गया। इस वक्त आपकी उम्र 20 बरस थी और आपने उस माहिदे में अहम किरदार अदा किया। जब जंग खत्म हुई तो अहले मक्का फिर से पुरानी रोश पर आ गए। खेल तमाशे, लाहो व लाब, निशाबाजी, जवा और फहाशी का बाजार गर्म हो गया। लोग दुनिया की रंगीनियों में गुम हो गए, लेकिन आप हस्बे मामूल बकरियां चराकर दूर मैदानों में चले जाते, जहां फितरत का सुकून होता, खुला माहौल होता, रूह को राहत मिलती। आपकी नजरें बकरियों पर होते, मगर दिल अल्लाह की वसिया दुनिया पर गौर करता। आपकी रूह इन मनाजिर से सरशार होती और सोच के दरीचे खुलते। यही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। यही आपका दिन रात का मामूल था। एक तरफ बकरियां चराना और खुले मैदानों में फितरत का मुशाहिदा करना, दूसरी तरफ तन्हाई में गौर व फिक्र, दुनिया की नज़्म व नसक और तख्लीक के राजों पर तदब्बर। यही काम आपको खुशी देते, यही सुकून का जरिया थे। आपको तन्हाई पसंद थी, क्योंकि इसी में आपकी रूह और अक्ल को तरक्की मिलती और अल्लाह की निशानियों पर गौर करने का मौका मिलता। इधर आपके चचा अबू तालिब दुनियावी फिक्र में मसरूफ रहते। वो घर की ज़रूरियात, रोजी रोटी और बच्चों की परवरिश में लगे रहते। उनके लिए भतीजे की जिम्मेदारी भी एक अहम बात थी। उनकी माली हालत बहुत अच्छी न थी। एक दिन वो आपके पास आए और कहने लगे, भतीजे, तुम जानते हो कि हमारी माली हालत कैसी है। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खदीजा अपना सामान तिजारत के लिए दूसरों को देती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लूं। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 30 या 24 साल थी। आपने अदब से कहा, चाचा जान, आप जो बेहतर समझें, मैं हाजिर हूं। खदीजा एक मुअज़्ज़िज़ और मालदार खातून थीं। उनका शजरा निसब 5वें पश्त में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। वो 2 बार शादी कर चुकी थीं। दोनों शौहर मालदार थे और उनके इंतकाल के बाद खदीजा के पास बहुत दौलत आ गई थी। बहुत से क़ुरैशी रोसा ने उनसे निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, मगर उन्होंने सबको रद्द कर दिया। वो अकेली थीं और अपनी दौलत को कारोबार में लगाकर फ़ायदा उठाती थीं। इसी वक्त जब अबू तालिब उनके पास पहुंचे, वो सोच ही रही थीं कि कोई दयानतदार शख्स मिले जिसे वो अपना सामान तिजारत के लिए दे सकें। अबू तालिब ने कहा, खदीजा, क्या तुम मोहम्मद के ज़रिए तिजारत करना पसंद करोगी? खदीजा ने कहा, अगर आप किसी और का नाम लेते तब भी मैं इनकार ना करती। फिर ये तो मेरे करीबी हैं और वो भी आमीन। अबू तालिब खुशी से वापस आए और कहा, मोहम्मद, खदीजा राजी हैं, तुम्हें तिजारत के लिए शाम जाना होगा। काफिला रवाना हुआ और साथ में खदीजा का गुलाम मिस्रा भी था, जो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद ख्याल रखता। ऐसा लगता जैसे वो खदीजा का नहीं बल्कि आप ही का गुलाम हो। उसकी वफादारी और मोहब्बत दीदनी थी। वो आपकी हर बात मानता, किसी बात से इनकार न करता। मक्का से रवानगी के वक्त तमाम चचा
खुसूसन अबू तालिब बहुत मोहब्बत से रुखसत करने आए। सब ने दुआएं दें, अल्लाह तुम्हारे सफ़र में बरकत दे, तिजारत खूब चले और खैरियत से वापस लौटो। मैसरा को भी ताकीद की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखना, कोई तकलीफ न होने देना। काफिला अपने सफ़र पर रवाना हुआ और चलते चलते शाम सीरिया के शहर बुसरी जा पहुंचा। वहां काफिले का पड़ाव हुआ। सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी, रास्तबाजी, नरम खुई और सच्चाई ने काफिले के तमाम लोगों के दिल जीत लिए। हर कोई आपसे मोहब्बत करने लगा। जहां पड़ाव था वहां करीब ही एक घना दरख्त था। एक दिन आप हस्बे मामूल उसके नीचे तन्हाई में बैठ गए और दुनिया व इंसानियत पर गौर व फिक्र करने लगे। हर मजहब, हर अकीदे और हर ख्याल को आप सोच की कसौटी पर परखते, समझने की कोशिश करते कि कौन सच पर है, किस हद तक है और कहां वो गलत रख पर है। आपकी यह आदत सफर में भी बरकरार रही, जैसा कि मक्का में थी। कारोबार की मसरूफियात के बावजूद आपकी रूहानी यकसुई और तन्हाई में गौर व फिक्र का सिलसिला कभी न रुका। जो सामान खदीजा ने दिया था, आपने निहायत कामयाबी और दियानतदारी से उसका सौदा किया। खरीदो फरोख्त में शाइस्तगी, लीन दीन में सफाई और मामलात में सच्चाई, हर जगह आपकी खूबियों का चर्चा हुआ। जब आप वापस लौटे तो जो चीज़ें खदीजा ने मंगवाई थीं, सब निहायत एहतिमाम से साथ लाए। यकीनन अल्लाह ने आपके लिए रिस्क का बेहतरीन जरिया पैदा कर दिया था। मक्का वापस आने से कुछ पहले जब काफिला मरकज ज़हरान, आजकल जिसे वादी फातिमा कहा जाता है, के मकाम पर पहुंचा तो मैसरा कुछ सोच में डूबा हुआ था। वो इन्हीं बातों में गुम था जो सफ़र के दौरान पेश आए, खास तौर पर वो मुलाकात जो एक ईसाई राहब निस्तूर से हुई थी। हवा यूं कि जब काफिला बसरी के मकाम पर ठहरा हुआ था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसबे आदत एक दरख्त के साए में बैठे गौर व फिक्र में मशगूल थे, मैसरा काफिले के दूसरे कामों में मसरूफ था। पास ही एक चर्च था जहां से एक राहब निस्तूर बाहर आया। वो मैसरा को पहचानता था क्योंकि मैसरा हर साल तिजारत के लिए वहां आता था। निस्तूर ने मैसरा से पूछा, ये नौजवान कौन है जो तुम्हारे साथ है? मैसरा ने जवाब दिया, ये कुरैश का एक जवान है जिनके खानदान के पास खाना काबा की चाबियां हैं। निस्तूर ने दिलचस्पी से पूछा, तुमने उसमें क्या खास बातें देखी हैं? मैसरा ने कहा, सच्चाई, दयानतदारी, पाकीज़गी, नफास्त, नरमी, खुश अखलाकी और एक गहरी सोच जो अक्सर उसे ख्यालों की दुनिया में ले जाती है। वो कायनात पर तदब्बर और गौर व फिक्र करता है। निस्तूर ने बेताबी से पूछा, उसकी आंखें कैसी हैं? मैसरा कुछ झिझका, फिर बोला, आंखें बड़ी सियाह और गहरी हैं, सफेद हिस्से में सरखी है, पलकें लंबी और बारीक हैं जो इसकी आंखों को और खूबसूरत बनाती हैं। निस्तूर ने सुनकर कहा, मैसरा, अगर कोई शख्स इस दरख्त के नीचे ठहरे और उसमें ये खूबियां हों तो वो नबी ही हो सकता है। फिर वो राहब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुतालिक सवालात करने लगा। वो जानना चाहता था कि आपका इन मज़ाहिब के बारे में क्या नज़रिया है और उनके मुतालिक आपके दिल में क्या मकाम है। आपने हर गलत अकीदे को रद्द किया और उससे इजहार बरात फरमाया। निस्तूर चूंकि खुद ईसाई मजहब का मानने वाला था, उसने जब अपने मजहब के बारे में पूछा तो आपने उसकी अच्छाइयाँ और खामियाँ दोनों वजाहत से बयान की। खदीजा बालाखाने पर बैठी थीं, ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रही थीं कि अचानक उनकी नज़र एक ऊंटनी पर पड़ी जो तेज़ रफ्तारी से रेगिस्तान की गर्म रेत पर चली आ रही थी। वो हैरत से देखने लगे कि आखिर ये सवार है कौन। जैसे ही वो करीब आया तो पहचान लिया कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तेज़ी से उनके घर की तरफ आ रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो खदीजा पहले से इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। बड़ी मोहब्बत से मिले, खैरियत से वापसी पर खुश हुए और मुबारकबाद दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दिलचस्प अंदाज में पूरे सफ़र का हाल सुनाया। क्या खरीदा, क्या बीचा, कितना फ़ायदा हुआ। खदीजा शौक़ से सुन रही थीं, दिल ही दिल में खुश हो रही थीं। आपकी सच्चाई, ईमानदारी और प्यारी बातों ने उनके दिल को बहुत भाया। ख़ास तौर पर उस बार तिजारत में जो बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ, वो सुनकर खदीजा बहुत मुतासिर हुए। इसी दौरान मैसरा भी आ गया। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सफ़र का अहवाल सुनाया।
किस तरह आपने तिजारत की, माल की हिफाजत की और लेन देन में कितनी ईमानदारी दिखाई। मैसरा ने राहब नस्तूर का वाकया भी सुनाया, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुशखबरी दी थी। ये सुनकर खदीजा का दिल खुशी और हैरत से भर गया। उनके दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत और भी बढ़ गई। मैसरा ने एक और हैरत अंगीज वाकया सुनाया। हम सफर से वापस आ रहे थे। मेरे साथ 2 ऊंट थे, मगर दोनों थक कर नढाल हो चुके थे। मैं काफले से बहुत पीछे रह गया। डर लगा कि कहीं काफला आगे न निकल जाए और मैं तन्हा न रह जाऊं। फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बयान की। उन्होंने पहले दोनों ऊंटों के पांव को प्यार से सहलाया, फिर खुद निकील पकड़ी और ऊंटों को हांका। हैरत की बात यह थी कि वो ऊंट यूं चलने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये किस्सा सुनकर खदीजा बहुत हैरान हुए। कहने लगे, भाई उनमें तो कुछ खास कमालात हैं। अब खदीजा के लिए मुमकिन न था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से निकाल सकें। हर वक्त आप ही का जिक्र करती रहते हैं, जिससे मिलते हैं आप ही की तारीफ करते हैं। उनके दिल में आपके लिए एक खास मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दिल चाहता कि किसी तरह ये नेक, सच्चे और ईमानदार नौजवान हमेशा के लिए उनका हमसफर बन जाए। ये ख्वाहिश रफ्ता रफ्ता एक तड़प में बदल गई। ये वही खदीजा थीं जिन्हें कुरैश के बड़े बड़े रईसों ने शादी की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने सबको इनकार कर दिया था, बेनयाजी से मुना मोड़ लिया था। इनकी ये ख्वाहिश अब छिपाए न छिपती थी। उनकी करीबी ख्वातीन को उसका अंदाजा हो गया। उन्हीं में एक खातून नफीसा बनती उमिया भी थीं। उन्होंने कहा, खदीजा, अगर तुम्हें उनसे मोहब्बत है तो निकाह करने में क्या हरज है। खदीजा ने पूछा, लेकिन कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। नफीसा ने जवाब दिया, तुम सिर्फ हाँ कहो, बाकी सब मेरे जिम्मे है। फिर नफीसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। कहा, मोहम्मद, कब तक अकेले जिंदगी गुजारते रहोगे? अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। आपने फरमाया, मेरे पास है ही क्या, मैं घर कैसे बसाऊं? नफीसा ने मुस्कुराकर कहा, अगर सब बंदोबस्त हो जाए और तुम्हें एक नेक दिल और इज्जतदार बीवी मिल जाए तो। नफीसा ने नरमी से पूछा, अगर तुम्हें एक खूबसूरत, बाइज्जत और मालदार खातून से निकाह की पेशकश हो तो क्या इनकार करोगे? तैयार हो जाओगे ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये कौन है? आपका इशारा किस तरफ है? नफीसा ने जवाब दिया, खदीजा, इन जैसा जोड़ा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। आप पहले ही खदीजा के अखलाक, उनकी अक्ल व फहम और सच्चाई से बहुत मुतासिर थे। जितना सुना था इससे बढ़कर पाया। लोग उन्हें ताहिरा यानी पाकीज़ा खातून कहा करते थे और आपने भी उन्हें वैसा ही पाया। मगर निकाह, ये तो कभी सोचा भी न था। आप जानते थे कि बड़े बड़े रईस उनके लिए राजी थे, मगर सबको उन्होंने इनकार कर दिया था। आपने नरमी से कहा, क्या वाकई ये मुमकिन है? वो मालदार, बाइज्जत खातून क्या मुझ जैसे सादा और गरीब इंसान से निकाह करेंगी? नफीसा ने इत्मीनान से जवाब दिया, उसकी फिक्र न करें, उनको राजी करना मेरा काम है। ये सुनकर आप फौरन अपने चचा अबू तालिब के पास गए और सारा वाकया सुना दिया। अबू तालिब पहले तो हैरान हुए, मगर चूंकि आपकी जबान से कभी झूठ न सुना था, इसलिए इनकार भी न कर सके। उन्होंने सोचा, फिर कहा, ताज्जुब की बात है बेटे, खदीजा कुरैश की इज्जतदार, मालदार और आली नसब खातून है, जिसने बड़े बड़े रेवसा को ठुकरा दिया। वो तुम्हें अपना शरीकी हयात बनाने पर आमादा हो जाए। फिर मुस्कुराकर कहा, लेकिन बेटे, ये कोई बईद बात नहीं। अगरचे तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं, मगर तुम खुद एक ऐसा कीमती हीरा हो कि सारी दौलत तुम्हारे सामने हैज है। आपने फरमाया, चचा जान, न मुझे माल की तलब है और न ही दुनिया की दौलत की कोई जरूरत महसूस होती है। इसके बाद अबू तालिब ने अपने भाइयों को साथ लिया और खदीजा के चचा उमर बिन असद के पास गए। वो उनके दूसरे रिश्तेदार उमर बिन खुलद से भी मिले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम पहुंचाया गया तो खदीजा के भाई और चचा फौरन राजी हो गए, गोया वो तो पहले ही से आमादा बैठे थे। दरअसल खदीजा के वालिद का इंतकाल हो चुका था, इसलिए ये जिम्मेदारी उनके करीबी मर्द रिश्तेदारों ने संभाली। जल्द ही निकाह की तारीख तय पा गई। मुकर्रर दिन आया तो कुरैश के मुअज़्ज़िज़ लोग
खदीजा के घर जमा हुए। अबू तालिब ने निकाह का खतबा दिया, जो बहुत ही प्रासर और शानदार था। उससे अंदाज़ा होता है कि ख़ानदान के बड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और खूबियों से किस कदर मुतासिर थे। उन्होंने अल्लाह की हमद व सुना के बाद फरमाया, ये मेरा भतीजा मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा है। कुरैश में ऐसा जवान कोई नहीं, अगरचा उसके पास माल कम है, लेकिन माल तो आनी जानी चीज़ है, साया है जो पल में छन जाए। मोहम्मद मेरा करीबी है, तुम सब जानते हो। वो खदीजा बंत खुवैलद से निकाह करना चाहता है और मैं अपने माल में से 20 ऊंट मेहर के तौर पर मुकर्रर करता हूँ। खुदा की किस्म, इस नौजवान का मुस्तकबल बहुत रोशन है। यूं ये बाबरकत निकाह अमल में आया। कुरैश की सबसे मुअज़्ज़िज़ खातून, कुरैश के सबसे सच्चे और अमानतदार नौजवान के घर आ गईं। इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल 2 महीने और 10 दिन थी, जबकि हज़रत खदीजा 40 बरस की थीं। इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की दहलीज पर थे। खूबसूरती और दिलकशी अपनी इंतहा पर थी। चमकता हुआ सफ़ीद रंग, मुस्कुराता चेहरा, हल्का गोल और नूरानी, कद दरमियाना, न छोटा न लंबा, सिर कुदरे बड़ा, उस पर सियाह घने और हल्के घंघरियाले बाल, पेशानी कशादा जो अजमत की निशानी थी, बारीक भरी हुई और खमदार अब्रो जो एक दूसरे से जदा थीं, निहायत हुसैन, लंबी पलकें, बड़ी बड़ी सियाह आंखें जिनमें सरमा लगा महसूस होता था, आंखों की सफेदी में हल्की सी सरखी जो उनकी नज़र को और भी प्रकशिश बना देती। हज़रत खदीजा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंतहाई खुशगवार थी। उनका साथ आपके लिए सुकून और राहत का जरिया था। वो निहायत समझदार, तजर्बाकार और दानिशमंद खातून थीं। उन्होंने न सिर्फ आपकी तबीयत, मिजाज, पसंद व नापसंद को पहचाना, बल्कि हर मौका पर आपकी दिल की बातों और जज्बात का ख्याल रखा। वो आपके ख्यालात, अमंगों और रुझानात को बखूबी समझती थीं और हमेशा उनके मुताबिक मददगार और मुआविन बनकर रहें। आपकी फितरत थी हमेशा सच बोलना, हर काम दियानतदारी से अंजाम देना, शौर शराबे और हंगामों से बचना और तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करना। खदीजा ने उन सब बातों का मुकम्मल लिहाज रखा, इसीलिए आपके रोज़मर्रा मामूलात में कोई रुकावट ना हुई। अब चौकी बिक्रियां चराने की जिम्मेदारी भी न रही, इसलिए और ज़्यादा यकसुई, सुकून और फुर्सत मैसर आ गई। जब चाहते चुपके से खामोशी में निकल जाते, कुदरती मनाजिर का मुशाहदा करते, अल्लाह की निशानियों पर गौर करते और हक की तलाश में सोचते रहते। यूं लगता जैसे आप फितरत की रहनुमाई में अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर गामजन हैं। अब आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा की तरफ। रंगत चमकदार, रोशन और सफ़ीद, नरमी और किशिश लिए हुए, चेहरा हल्का गोल और नूर से भरपूर, मुस्कुराता हुआ, निहायत दिलकश और पुरुनक, आंखों में हया, मासूमियत और शर्म की झलक, आंखें बड़ी, सियाह और गहरी जैसे सुरमा लगा हो, सफ़ीद हिस्से में हल्की सी सरखी जो कशिश को दुबाला करती, लंबी पलकें और बारीक, खमदार, जदा जदा और भरी हुई भनवें, नाक सितवां और कुदरे ऊंची, सामने के दांतों में हल्की हल्की लकीरें, बोलते वक्त लगता जैसे चमकते मोती हूँ, गोया रोशनी बखेरते हूँ, चेहरे पर घनी भरी हुई दाढ़ी, गर्दन बुलंद, हुसैन और खूबसूरत, सीना चौड़ा, कुंधों के दरमियान फासला मामूल से कुछ ज्यादा, कलाइयाँ कशादा, नरम और मुलायम हथेलियाँ, उंगलियाँ मुतनासिब और मुनासिब लंबाई वाली, पंडलियाँ हल्की फुली, एड़ियाँ बारीक, तिलवे कुछ गहरे, चलने में तेजी होती, ऐसे जैसे ढलान पर उतर रहे हों, लेकिन वकार से, कदम मजबूती से रखते, चलते वक्त झुकाव आगे की तरफ होता, चेहरा फिक्र में डूबा हुआ, आंखों में पाकीज़ा ख्यालात और बुलंद जज्बात की चमक, देखने वाला पहली ही नज़र में मुतासिर हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रूहानी तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे। दिल व दिमाग ईमान और यकीन से लबरेज थे, और हमने उसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की बादशाही दिखाई ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। लेकिन क्या इस रूहानी सफ़र में आप हज़रत खदीजा की जिम्मेदारियों से गाफिल हो गए थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। जैसे खदीजा एक वफादार, बाशूर और जिम्मेदार बीवी थीं, वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मिसाली शौहर थे। इबादत के साथ साथ आप उनके तमाम हुकूक अदा करते, उनकी पसंद और मिजाज का लिहाज रखते, उनके दिल को बहलाने का सामान करते, उनके माल की हिफाजत करते
और कारोबार को तरक्की देने की फिक्र रखते। जो शख्स अमानतदार और साफ गो होता, उसी को कारोबार में शरीक करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए निहायत महबूब और जिम्मेदार शौहर थे। आपका रहन सहन, अंदाज और गुफ्तगू हजरत खदीजा के लिए निहायत प्रकशिश और दिल को भाने वाला था। उन्होंने आपको बड़े बड़े मालदारों और मुअज़्ज़िज़ लोगों पर तरजीह दी थी और दुनियावी शान और शौकत के बजाय आपके इखलाक और किरदार को पसंद किया था। उन्हें आपसे बड़ी मोहब्बत और एतिमाद था, लेकिन उन्हें भी शायद उस वक्त अंदाज़ा न था कि वो कितनी खुश नसीब हैं। आप मिजाजन तन्हाई पसंद थे, लेकिन उसका मतलब ये न था कि आप लोगों से कटे हुए थे। आप लोगों से ताल्लुक़ रखते, उनके मामलात में दिलचस्पी लेते, उनकी बातों को तौजह से सुनते, आम तौर पर खामोश रहते, बग़ैर ज़रूरत के बात ना करते, और जब भी बात करते तो मुख्तसर पर असर और मानी खीज़ अल्फाज में। आपकी बातों में नरमी होती, हल्का सा मिजाह भी शामिल होता जो दिल को छू लेता। आपकी मुस्कुराहट चेहरे पर हुमा वक्त रहती, जो कभी कभी खुशगवार हंसी में बदल जाती। जो भी आपसे गुफ्तगू करता, वो आपके अंदाज, गुफ्तगू और अखलाक से मुतास्सिर हुए बगैर न रहता। मक्का चारों तरफ से पहाड़ों में घरा हुआ है और दरमियान में खाना काबा वाक़े है। जब बारिश जोर की होती तो पानी शहर में भर जाता, यहाँ तक कि काबा के अंदर भी पानी घुस जाता। काबा की दीवारें उस वक्त बहुत ऊंची न थीं, ना ही इन पर छत थी, जैसे हमारे यहाँ ईदगाहें होती हैं। एक मरतबा बहुत शदीद बारिश और सीलाब आया, कई इमारतें गिर गईं, पानी खाना काबा में भी भर गया। इसकी दीवारें चटकने लगें, बुनियादें हिल चुकी थीं। ये मामला मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। वो बहुत फिक्रमंद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी तरह उस फिक्र में शरीक थे। काबा उनके लिए सब कुछ था। ये उनका इबादत खाना भी था और उनके माबूदों का मरकज भी। दूर दराज के लोग ज़ियारत के लिए आते, तवाफ करते, और उस वजह से मक्का वालों के कारोबार को भी खूब फ़ायदा पहुंचता। उनकी इज्जत बढ़ती, क्योंकि लोग उन्हें काबा के पड़ोसी और खिदमतगार समझते थे। यही वजह थी कि वो उसके बारे में हर फैसले को बहुत सोच समझ कर लेना चाहते थे। आखिर मक्का के मुअज़्ज़िज़ लोग जमा हुए। मशूरा हुआ कि अब क्या किया जाए। क्या पुरानी इमारत को गिरा कर नया मजबूत खाना काबा बनाया जाए? लेकिन ये इतना आसान फैसला न था। सबको खौफ था कि अगर हमने अल्लाह के घर को गिरा दिया तो कहीं अल्लाह का गज़ब ना आ जाए, कहीं कोई अजाब ना आ टूटे। मगर हालत ऐसी हो चुकी थी कि पुरानी दीवारें कमज़ोर हो चुकी थीं और किसी भी वक्त गिर सकती थीं। आखिर सबने हचकचाते हुए फैसला कर लिया कि इमारत को गिराया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये था, कौन पहला शख्स होगा जो इस मुक़द्दस इमारत पर हाथ डालेगा? फिर नई इमारत की तामीर कैसे होगी और कौन उसके लिए माल व दौलत देगा? सब सोचों में गुम थे। लेकिन एक बात तय थी, नई इमारत को मजबूत, पायदार और शायानी शान होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का पाक तरीन घर था। मसला सिर्फ इमारत गिराने का न था, बल्कि ये भी सोचना था कि नई मजबूत इमारत के लिए अमदा सामान कहाँ से लाया जाए और ऐसे माहिर कारीगर कहाँ मिलें जो दीवारों को खूबसूरती से जोड़ सकें, इमारत को मुस्तहकम और दलक्ष बना सकें। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इन्हीं दिनों एक रोमी शख्स जो मिस्र से हबशा जा रहा था, जदा की बंदरगाह पर उसका जहाज आकर टकरा गया और तबाह हो गया। इस जहाज में अमदा लकड़ियां और आली मयार का तामीरी सामान लदा हुआ था। जब सामान किनारे पर उतारा गया तो इस रोमी का नाम बाकूम था। वो बंदरगाह पर किसी दूसरे जहाज के इंतजार में रख गया जो हबशा की तरफ जाए। जब कुरैश को इस हादिसे की खबर मिली तो फौरन कुछ लोग वहां भेजे। वो बाकूम से मिले और अपनी ज़रूरत बयान की। बाकूम ने खुशी से सामान फरोख्त करने पर आमादगी जाहिर की और बताया कि वो खुद भी माहिर मेमार है। कुरैश को जैसे खजाना मिल गया। उन्हें तो ऐसे कारीगर की तलाश थी। उन्होंने फौरन कहा। इब्राहा और उसकी फौज का इंजाम अभी लोगों के जहनों में ताज़ा था। उनकी हिलाकत और तबाही का मंजर आंखों के सामने आ जाता तो लोग खौफजदा हो जाते। लेकिन कुरैश का मकसद खाना काबा को गिराना नहीं, बल्कि उसे बेहतर और मजबूत बनाकर दोबारा तामीर करना था। चनांचा लोगों ने पहले नमाजें पढ़ीं, कुर्बानियां दें, दुआएं की, अल्लाह से मदद मांगी। फिर एक शख्स जिसका नाम वलीद बन मगीरा था, कप कपाते हाथों से आगे बढ़ा।
उसके जिस्म पर लर्जा तारी था। उसने कदाल उठाई और एक सितून को गिरा दिया। चारों तरफ खामोशी छा गई। सब दम साधे देख रहे थे कि वलीद का क्या अंजाम होता है। क्या वो किसी आफत में गिरफ्तार होता है? लेकिन रात गुजर गई, सुबह हो गई और वलीद बिल्कुल सलामत रहा। किसी किस्म की मुसीबत न आई। ये देखकर कुरैश की हिम्मत बढ़ गई। दिलों को इत्मीनान हुआ। अब सबने मिलकर खाना काबा को गिराना शुरू कर दिया। हर कबीले ने अपने अपने हिस्से का काम संभाला। पत्थर उठाए, मिलबा साफ किया, दीवारें गिराएं। तामीर के दौरान जब लोग जमीन खोदते खोदते एक सब्ज चट्टान तक पहुंचे तो इस पर कदालें मारें, मगर वो चट्टान हिली तक नहीं। कदालें वापस छलाएं जैसे चट्टान ने उन्हें रोक दिया हो। इसी मजबूत चट्टान को नई इमारत की बुनियाद बना दिया गया। पास की पहाड़ियों से पत्थर लाए गए और सबने नए सिरे से इमारत की तामीर शुरू की। आप और आपके चचा भी उस नेक काम में बढ़ चढ़कर शरीक थे। रिफ्ता रिफ्ता मजबूत और बुलंद दीवारें खड़ी हो गईं। पुराने काबा की मशरिकी दीवार में एक सियाह पत्थर था जिसे अरब हजर इस्वद कहते थे और अब भी वही मौजूद है। अरब उसे बहुत बाबरकत समझते थे और इस्लाम ने भी उसे खास मकाम अता किया। तवाफ हमेशा उसी पत्थर से शुरू किया जाता है और उसे बोसा दिया जाता है। अब जबकि दीवारें बुलंद हो गईं और हजर इस्वद को उसकी जगह रखने का वक्त आया तो सवाल खड़ा हो गया, ये शरफ किसको हासिल हो? कौन उसे उसकी जगह रखे? हर कबीला चाहता था कि ये सआदत उसे हासिल हो। कोई भी पीछे रहने को तैयार ना था। हर कबीला अपने आप को दूसरों से ज्यादा हकदार समझता था। यूं बात बढ़ने लगी, तकरार शुरू हो गई। लोगों में इख्तिलाफ और झगड़ा होने लगा। ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं ये तामीर खाना जंगी का सबब न बन जाए। इख्तिलाफ उन बढ़ता चला गया। जो दिल खाना काबा के एहतराम में अब तक जुड़े हुए थे, अब उनमें दिराड़ें आने लगे। नफरत और दुश्मनी की आग सुलगने लगी। 5 रातें गुजर गईं, लेकिन कोई फैसला न हो सका। न कोई तजवीज मंजूर हुई, न कोई मुआहदा ते पाया। माहौल कशीदा होता जा रहा था। कबीले आपस में मरने मारने पर तुल गए थे। 2 मशहूर कबीले बनी अब्दुलदार और बनी अदी ने बाहम इत्तेहाद कर लिया। उन्होंने कसम खाई कि ये एजाज हम किसी को नहीं देंगे, हजर अस्वद हम ही रखेंगे, किसी और को आगे न बढ़ने देंगे। अरबों का एक रवाज था कि जब जान पर खेल जाने की कसम खाते तो खून से भरा प्याला रखते और कसम खाने वाले उसमें हाथ डबूते। उन्होंने ये रस्म भी अदा की। तलवारें नियाम से बाहर निकल आएं। माहौल जंग के दहाने पर था। इसी वक्त अबू उम्मिया बिन मगीरा उठा। वो कुरैश का सबसे बूढ़ा और तजर्बाकार शख्स था। सब उसकी इज्जत करते थे और उसके अल्फाज को एहतराम से सुनते थे। नरमी से बोला, आए भाइयों, तुम सब इज्जतदार हो, तुम सबका मकाम बराबर है। बलावजा झगड़ो मत, दुश्मनी न फैलाओ, अकल से काम लो। मेरी बात मानो। जो पहला शख्स बाबू सफा से आए, हम उसके फैसले को कबूल कर लें। सब ने उस तजवीज़ पर इत्तिफाक किया। हरम शरीफ के दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम बाबू सफ़ाओ है, क्योंकि ये सफ़ा पहाड़ी की तरफ है। सब ने नज़रें इस दरवाजे पर जमा दें। इंतज़ार करने लगे, देखें किसके हाथ में फैसला आता है, कौन इस पेचीदा मसले को सुलझाता है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि थोड़ी ही देर में एक खूबरो नौजवान बाबू सफ़ा से नमूदार हुआ। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ आ रहा था। जो उन्हीं लोगों ने देखा, सब चीख उठे, अमीन अमीन, मोहम्मद अमीन, हम मोहम्मद के फैसले पर राजी हैं। कितना एतमाद था कुरैश को इस नौजवान पर। पूरी कौम में कोई और ऐसा शख्स न था जिस पर सबको इतना यकीन हो। नहीं, कोई भी शख्स इस बात पर शक नहीं करता था कि यह फैसला दुरुस्त होगा। कोई झिझकता नहीं था कि इस फैसले को कबूल करे। लोग बेसब्री से आगे बढ़े और आपसे फैसला करने की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, कपड़ा ले आओ। कपड़ा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फैला दिया। फिर हजर इस्वद को उठाया और कपड़े पर रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार कपड़े के एक एक कोने को पकड़े और सब मिलकर उसे उठाएं। कबीलों के सरदार आगे बढ़े, कपड़े के कोने पकड़े और जिस जगह पत्थर लगाना था वहां ले आए। फिर आपने खुद उसे उठाया और अपनी जगह रख दिया। लोग खुशी से झूम उठे। कितनी पेचीदा मसला आसानी से हल हो गई। हर एक की बात शामिल हुई। कोई भी उस सादत से महरूम न रहा। आपकी समझदारी और हिकमत ने
एक बड़ा फसाद रोका। कौम खतरनाक खाना जंगी से बच गई। दुश्मनी और बग़ज़ की आग बुझ गई और सब पहले की तरह एक दूसरे में घुल मिल गए। फिर कुरैश ने काबा की तामीर मुकम्मल की। खंभों पर छत डाल दी गई और एक दरवाज़ा बनाया जहां खुदा हबल की मूर्ति रखी गई थी। तब तक आपकी मुबारक ज़िंदगी की 35 बहारें गुजर चुकी थीं। देखा आपने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे थे, कुरैश में कितने महबूब थे। उनका किरदार बेदाग था, उनका अखलाक पाकीज़ा था। हर कोई आपकी इज्जत करता और जो बात आप करते वो मान लेता। और बेशक तुम बेहतरीन अखलाक के मालिक हो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।